Hello friends, welcome back to my channel Crash Course by Sekhar. In our last two videos, we have studied about the invasion of Arabs, Muhammad Ghori, Mahmud Ghaznavi, Battle of Tarain, First Battle of Tarain, Second Battle of Tarain, Battle of Chandawar, which was fought between Jachand and Muhammad Ghori in 1194. We have seen that in 712. We have seen that in 712 In 712, Muhammad bin Qasim attacked India. The ruler of Sindh was King Dahir. He got defeated by Muhammad bin Qasim. And after that, in 100,000 AD, Muhammad Ghaznavi attacked India. He attacked India for 17 times. He looted and exploited the wealth of India. The most famous invasion of Muhammad Ghaznavi was 1025. It means his attack on Somnath temple was very famous. After that, we have studied about Muhammad Ghori, his first battle of Tarain with Prithviraj Chauhan, second battle of Tarain. In first battle of Tarain, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori, but in second battle of Tarain, Prithviraj Chauhan got defeated by Muhammad Ghori. In 1194, Muhammad Ghori also defeated Chandawar. The battle of Chandawar, he defeated Jaichand. After that, Muhammad Ghori was killed by the Khokhar tribes in 1206, and after that we have to study about the Delhi Sultanate, which reigns from 1206 to 1526. It's not 1290, it's 1526 when first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. Here we have five dynasties. First one is Slave dynasty, which reigns from 1206 to 1290, in which we have to study about Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia Sultan, Alauddin Masood Shah, Bahram Shah, Nasruddin Mahmud, Balban and Qumars. After that, we will study about the Khilji dynasty, which reigns from 1290 to 1320, in which we will study about Jalaluddin Firoz Shah Khilji, Alauddin Khilji and Mubarak Khilji. After that, we will study about the Tughlaq dynasty, which reigns from 1320 to 1414, in which first we will study about Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq, then Firoz Shah Tughlaq and some other rulers of Tughlaq dynasty. Then after we will study about the Sayyid dynasty, which reigns from 1414 to 1451. After that, we will study about the Lodi dynasty. The last ruler of Lodi dynasty was Ibrahim Lodi. First battle of Panipat was fought on 21st of April 1526, which was fought between Ibrahim Lodi and Babur. He was the ruler of Fargana. And Babur defeated Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the first ruler who died in the battlefield. He was only the ruler of the whole Delhi Sultanate who died in the battlefield. And on 21st of April 1526, the era of Delhi Sultanate ended and the new era of Mughals started in the Indian medieval history. यानी कि लास्ट दोनों वीडियोज़ में हमने ये देखा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम कैसे भारत पे हमला करता है और भारत के राजा दाहिर को पराजित करता है। उसके बाद महमूद गजनवी जो है वो 1000 ईस्वी में भारत पर पहला हमला करता है। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। 17वां बार उसने भारत में काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाई, काफ़ी कत्लेआम किया। उसका जो सबसे फेमस अटैक है वो 1025 ईस्वी में जब उसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, वो जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद हमने महमूद गोरी के बारे में पढ़ा, जिसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने तो उसे आराम से पराजित कर दिया। उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर दिया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या खोखर जनजाति के लोगों के द्वारा कर दी गई। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है यह 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। इसमें कुल 5 वंश होते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक रहता है, जिसमें हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन और क्यूमर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो कि काफ़ी फेमस है, जिस पे मूवी बनी है पद्मावत। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुबारक खिलजी के बारे में। आफ्टर डैट हम उसके बाद पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला सुल्तान
पगला बादशाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, जिसने सर्वाधिक नहरों का काम किया था। उसके बाद हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंतिम हम लोग लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है, जैसा कि सबको पता है। इब्राहिम लोदी पर बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को हमला किया था और एक काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत की 3 युद्ध हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, और तीनों युद्ध के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। और लेकिन पानीपत, यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का समापन हुआ और मुगल वंश का प्रारंभ हुआ, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक रहता है। बहादुर शाह जफर, जिसे अंग्रेजों ने जब खदेड़ा, तब वो हुमायूं के मकबरे से उसको पकड़ा और उसकी वाइफ जीनत महल को पकड़ा और उसे रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ पर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, और वो भी दिल्ली सल्तनत में वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्लेव डायनेस्टी विच रेंज फ्रॉम 1206 टू 1290। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, इसका टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1290। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ऑफ द होल दिल्ली सल्तनत इज नोन एज कुतुबुद्दीन ऐबक। हिज टाइम पीरियड इज़ नॉट लॉन्ग, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है, या ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि पोलो खेलते समय 1210 में, पोलो को चौगान भी बोलते हैं, इट मीन्स पोलो इज ऑल्सो नोन एज चौगान। तो पोलो खेलते समय 1210 में ही फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स एंड देन ही गॉट डाइड, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। द स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ। ही पुट हिज कैपिटल लाहौर, क्योंकि इसको लाहौर के अमीरों के द्वारा इन्विटेशन दिया गया था कि आप आइए और रूल कीजिए। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौस और नसरुद्दीन कुबाचा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, यह काफ़ी टैलेंटेड था, यह अग्रणी था। इस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के अमीरों के द्वारा इनवाइट किया गया। इस कारण से इसने अपना कैपिटल भी लाहौर रखा, और यह अपने बाकी दोनों गुलामों के डर से, अपने बाकी दोनों नहीं, मोहम्मद गौरी के दोनों बाकी गुलामों के डर से यह कभी भी दिल्ली नहीं गया और इसने अपनी राजधानी लाहौर ही रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक इज ऑल्सो नोन एज हातिम ताई, लाख बख्श एंड कुरान खां। हातिम ताई जो था, इसके चाइल्डहुड का नाम था। लाख बख्श ही यूज टू, यह जो दान करता था वो लाखों में करता था। कुरान खां इसलिए नाम था क्योंकि अफ़गानिस्तान के निसापुर में गुलामों का एक मेला लगता है। वहाँ पे एक काजी ने इनको ख़रीदा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा, और वो जो काजी थे वो इसको कुरान का पाठ सिखाया करते थे। तो यह जो कुरान का पाठ था काफ़ी सुरीली आवाज़ में करता था। दैट्स वाई ही केम टू नोन एज कुरान खां। ही नेवर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान, बट ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ बाय द टाइटल ऑफ मलिक एंड सिपह सलार। यानी कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन इसने खुद को मलिक और सिपह सलार की उपाधि से संतुष्ट रखा। एज आई हैव सेड दैट हिज डेथ वाज ऑकर्ड व्हाइल प्लेइंग पोलो, ही फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स एंड ही गॉट डाइड इन द फील्ड। अगर इसके निर्माण कार्यों की बात की जाए तो इसने दिल्ली के समीप कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। तुर्कों के द्वारा यह भारत में बनाया जाने वाला पहला मस्जिद था। फिर इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया, और इसने दिल्ली में, एज वी ऑल नो दैट देयर इज़ कुतुब मीनार इन दिल्ली, और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। देयर आर 5 फ्लोर्स इन कुतुब मीनार एंड 3 रूलर्स आर रिलेटेड विथ इट। 3 रूलर का नाम इससे जुड़ा हुआ है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा इल्तुतमिश है, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। जो कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। दूसरी से पाँचवीं मंजिल थी, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। लेकिन 5वीं मंजिल पर बिजली गिर गई, जिससे 5वीं मंजिल जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, और उसका पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन वॉज डन बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। जैसा कि मैंने पहले बताया, एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट देयर वर 3 स्लेव्स ऑफ गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौस एंड नसरुद्दीन कुबाचा। इसके बाद आराम शाह आता है। आराम शाह वॉज सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, बट ही वॉज नॉट एन इन्फ्लुएंशियल रूलर। दैट्स वाई ही गॉट डिफीटेड बाई इल्तुतमिश नियर आगरा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया। आराम शाह ने बस 8 महीने तक शासन किया था। इल्तुतमिश जब शासक बना, इसको दिल्ली के अमीरों के द्वारा इनविटेशन मिला था। जब इसको इनविटेशन मिला तब यह बदायूं का इक़्तिदार था। सबसे पहले इसने ग्वालियर को जीता था और वहाँ की एकता प्रदान की गई थी। उसके बाद जब इसको इन्वाइट किया गया दिल्ली का शासक बनने के लिए, तब यह बदायूं का इक़्तिदार था। इसने क्या किया, इसने आराम शाह को आगरा के समीप पराजित कर दिया और यह दिल्ली का शासक बना।
रियल एस्टैब्लिशर ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वह इल्तुतमिश को ही बोला जाता है, क्योंकि नसरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दौज, इन पर पकड़ वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बना पाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इनको पराजित किया। ताजुद्दीन एल्दौज जो था यह गजनी का रूलर था, यह गजनी पर शासन कर रहा था। वहाँ पे ख्वारिज्म शाह गया, ख्वारिज्म शाह ने ताजुद्दीन एल्दौज को पराजित कर दिया। ताजुद्दीन एल्दौज भागते हुए दिल्ली आया, इसका फ़ायदा उठाया इल्तुतमिश ने इसको खदेड़ा और यह पानीपत पहुंचा एंड देन तराइन पहुंचा। देन द थर्ड बैटल ऑफ तराइन विच वॉज फॉट इन 1215 बिटवीन ताजुद्दीन एल्दौज एंड इल्तुतमिश occurred in 1215. Tajuddin Eldous got defeated very badly and Iltutmish became victorious. Iltutmish ने ताजुद्दीन एल्दौज का किस्सा समाप्त किया। After that Iltutmish also captured Sindh and Multan in 1228 and he also finished the third slave of Muhammad Ghori, Nasruddin Kubacha. Although he killed himself, he jumped in the Sindh river when he was kicked out of his own ruled land Sindh and Multan in 1228. Iltutmish was the first ruler who got the title of Sultan officially in 1229 by Al-Mustasir Billah. इल्तुतमिश जो था यह पहला ऐसा शासक था जिसको वैधानिक रूप से 1229 में सुल्तान की उपाधि अल-मुस्तसीर बिल्लाह ने प्रदान की, जो कि उस समय का खलीफा था। इल्तुतमिश स्टार्टेड द प्योर अरेबियन कोइंस, यानी कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, विच इज़ नोन एज टंका एंड जीतल। टंका जो था यह सिल्वर का बना हुआ था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ही स्टार्टेड टू राइट द नेम ऑन द कोइंस। उसने जो क्या किया, उसने सिक्कों पर नाम लिखना स्टार्ट किया और सिक्कों पर सबसे पहला नाम उसने स्वयं का 1236 ईस्वी में 1236 में बमियान अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश की तबीयत खराब हो गई एंड ही डाइड देयर। आफ्टर दैट रुकनुद्दीन फिरोज शाह वाज सन ऑफ इल्तुतमिश बट ही वाज नॉट वेरी इन्फ्लुएंशियल लाइक आराम शाह, हुआ सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान केम ऑन थ्रोन। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर। वह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। शी केम आउट ऑफ द पर्दा प्रथा। उसने पर्दा प्रथा को समाप्त किया, शासिका बनी। मलिक जमालुद्दीन याकूत। ही वॉज अपॉइंटेड एज अमीर आखूर। अमीर आखूर एक पोस्ट होता था, अमीर आखूर एक जो था पोस्ट था। घोड़ों का जो अस्तबल होता है, अस्तबल का जो हेड होता था उसको अमीर आखूर बोलते थे। तो अमीर आखूर जो था वो मलिक जमालुद्दीन याकूत था, जिसको जो रजिया सुल्तान का नियुक्त हुआ था। कहीं कहीं बोला जाता है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता जो था वो दूसरे टाइप का था, बट इट्स नॉट ऑफिशियली एंड इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। मलिक जमालुद्दीन याकूत इसका रजिया सुल्तान का अमीर आखूर था। रजिया सुल्तान गॉट मैरिड विथ अल्तुनिया हु वाज द किंग ऑफ भटिंडा। शी डिड दिस मैरिज स्टेप just to strengthen her condition, but she got failed. She was killed by the Dacoits while returning to Delhi in Cathal by the Dacoits. यानी कि उसकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं के द्वारा कैथल नामक जगह के समीप कर दी गई। अब आते हैं बहराम शाह 1242 अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 to 1246 and then Nasruddin Mahmud 1246 to 1265। नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। बलबन की जो बेटी थी, बलबन की बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद से हुई थी और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद एंटाइटल्ड बलबन विद द टाइटल ऑफ उल्लुग खां। After that, the last influential ruler of slave dynasty was Balban. He ruled from 1266 to 1287. He gave the policy of blood and iron. लॉ एवं रक्त की नीति बलबन ने ही दी थी। He ended the दल चालीसा, which is also known as तुर्कान चिहलगामी, which was started by Iltutmish but was ended by Balban. तुर्कान चिहलगामी एक ऐसा संगठन था जिसमें 40 गुलामों का एक दल होता था और यह एक अंगरक्षक के तौर पे भी काम करते थे। इल्तुतमिश ने इसको स्टार्ट किया था लेकिन बलबन ने इसको फिनिश कर दिया। नौरोज फेस्टिवल जो था बलबन ने स्टार्ट किया था। यह फारसी रीति रिवाजों पर आधारित था। बलबन वॉज द लास्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर और लास्ट फेमस रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी।
And the last ruler of the slave dynasty, it means the last normal ruler of slave dynasty, was Qumars. Qumars was defeated by Jalaluddin Firoz Shah Khilji in 1290 and then the Khilji dynasty started. यानी कि क्यूमर्स जो था, क्यूमर्स एक प्रभावी शासक नहीं था या एक कमज़ोर शासक था, मजबूत शासक नहीं था। इसकी हत्या या फिर इसको 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, उसने क्यूमर्स को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद अगले वंश खिलजी वंश की शुरुआत की, अबाउट विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।